God. Okay, so I want to continue teaching you on emotions today. तो विषय में हम आगे बढ़ेंगे. Yeah. Jesus told in John 16:33, यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, these things I have spoken to you that in me you may have peace. अब मैंने ये बातें आपको कहा क्योंकि आपको मुझ में शांति होगी. Jesus' words bring peace. और यीशु का वचन शांति ले आता है. He's telling them this before going on the cross. और यीशु उनके चेलों को कह रहा है क्रूस पे जाने से पहले. He's preparing them for what they are going to see. अब वो यीशु उनको तैयार कर रहा है जो बातें वो देखने वाले हैं. 3.5 years they have only seen that Jesus strong. और 3.5 साल उन्होंने यीशु को बहुत ही सामर्थ्यवान देखा. They have only seen Jesus perform miracles after miracles. उन्होंने यही देखा कि यीशु चमत्कार के ऊपर चमत्कार कर रहा है. One word and demons will run. एक शब्द और दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं. Now they are going to see something different. अब चेले कुछ और ही देखने वाले हैं. Now they are going to see Jesus weak. अब वो यीशु को जो है बहुत कमजोर देखने वाले They are हैं. going to see Jesus being spit upon. और देखने वाले कि लोग यीशु पे थूकने वाले हैं. Jesus knows their emotions are going to go off balance. और यीशु जानता है कि चेलों की भावनाएं में जो है उथल पुथल होगी. But what is Jesus saying? तो यीशु क्या कहता है? He's saying be of good cheer. वो कहता है तुम जो है वो आनंद मनाओ. If you and I are in the disciples' place, अगर आप और मैं उस समय चेलों की जगह पे होते, Jesus, you're okay, no? हम कहते यीशु कि आप ठीक हो. बुखार तो नहीं है ना? You're just telling us you are going to go on the cross, आप जो है क्रूस पे जा रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं, and now you're telling be happy. और आप हमसे कह रहे हैं कि आनंद मनाओ. You're okay, no? Jesus is saying I'm absolutely okay. यीशु कहता है मैं सही में पूरी You, तरह ठीक हूँ. you know what is your problem? आपका समस्या क्या है? You just heard the part about the cross. आपने सिर्फ क्रूस का ही भाग सुना है. You did not hear that I will rise up again. आपने सुना नहीं कि मैं फिर से पुनरुत्थान That is the होऊंगा. problem. अब वही समस्या है. You are looking at the cross and you will feel depressed. और आप क्रूस को देखते हैं और हताश हो जाते But हो. I told you third day I will rise up from the और dead. मैंने आपसे कहा 3 दिन में मरे हुए में से जी उठूंगा. So if you keep your focus on the third day, अगर आप आपका ध्यान तीसरे दिन पर रखते हो, you can rejoice. तो आप आनंद मना सकते हो. You can rejoice. आनंद मना सकते हो. Can I hear an amen? Amen. Yeah. So Jesus यीशु is telling us वो हमसे कहता है you can control your emotions. आप आपके भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हो. You can. आप कर रख सकते Your हो. emotions don't need to control you. आपके भावनाओं को आपको नियंत्रण नहीं करना है. Our problem is we are stuck at the problem, हमारा समस्या है कि हम समस्या में रुक जाते हैं. at the cross. क्रूस के पास Jesus is saying there is a resurrection after the cross. यीशु कहता है क्रूस के बाद जो पुनरुत्थान है. If you focus on that, अगर आप पुनरुत्थान पे ध्यान you लगाते can हो, be happy. आप आनंदित हो सकते हो. Okay, let's go to the next point. और अगले पॉइंट में जाएंगे हम. Your past doesn't control your emotions. और आपका Wow. अतीत जो है आपके भावनाओं को नियंत्रित नहीं रखता. Yeah, your past does आपका not अतीत- control your emotions. आपका अतीत जो है आपके भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता. Amen. This is what the world tells you. और यही संसार आपको बताता है. This is what happened to you, so now you are like this. और आपके साथ ये हुआ, अभी आप ऐसे हो. So we justify it. और हम जो है वो लोगों को अच्छा बताते हैं. And let me tell you, we will never grow if we keep justifying these things. अगर इन बातों को हम बढ़ावा देते रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे. You know something? I don't see anything of this nonsense in the Bible. अब बाइबल में ये सब बातों को हम नहीं देखते. You will be shocked. आप चौंक जाओगे. You will be shocked. चौंक जाओगे. Old Testament. पुराना नियम. Yeah, Old Testament where the Holy Spirit is not even inside the believer. और पुराना नियम में जो है जो पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर भी नहीं है. People have lived for the Lord. और लोग प्रभु के लिए जिए हैं. Yeah, they have lived for the Lord. प्रभु के लिए जिए हैं. Okay, what about Joseph? यूसुफ के बारे में You know the story. He is betrayed by his own brothers. आप जानते कहानी, उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया. बेचारा ऐसा ही आ रहा है भाइयों को मिलने, and they are attacking him and putting him in one खड्डा. और लोग उसके भाई जो उस पे आक्रमण कर रहे हैं एक गड्ढे में डालते हैं उसको. Yeah, and then they are saying why to kill him? इसको मार डालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बेच देते हैं, थोड़े पैसे कमा लेंगे. हाँ, own brothers, own blood. उसके खुद के भाई जो. And this boy is a small boy, ये लड़का जो है छोटा है अभी. 17, 18 years old. 17 साल का लड़का. Correct? And then he is sold and he is sent to Egypt. और उसको बेचा गया, उसको मिस्र देश में भेजा गया. My question is, मेरा सवाल है what must be his emotional state? उसका भावना का स्थिति क्या हुआ होगा. Huh? Then he is, he is working for somebody, और वो किसी के घर पर काम करता था. Potiphar, पोतीफर के घर and the पे. wife is eyeing him. और उसकी पत्नी जो उस पर नजर डालती है. बेचारे ने कुछ नहीं किया, फालतू में सब लोग उसको परेशान कर रहे हैं.
Correct, no? See, if he was this emotionally broken guy, अगर भावनाओं में अगर टूटा हुआ व्यक्ति होता, you know, he would have आराम से said yes to Potiphar's wife. तो पोतीफर की पत्नी को वो हाँ कहता. Nobody said amen. When you're not okay, अगर आप ठीक नहीं होते, कुछ भी हम करते हैं और बोलते नहीं मेरा इमोशनल बैलेंस नहीं था ना, इसके लिए मैंने कर दिया. कहते और बाद कि- में प्रभु है ना हमें क्षमा करने के लिए. जोसेफ के पास बाइबल नहीं है, पास्टर नहीं है, फॉलो अप वाला कोई नहीं है, फोन मोबाइल भी नहीं है, हेलो, कुछ भी नहीं है जहां पे कोई उसको एनकरेज करे. Nobody is there. कोई नहीं वहां पर. Still, his फिर heart भी- is right with God. उसका हृदय प्रभु के साथ सही He है. had enough reasons to do all wrong. उसके पास बहुत सारे कारण थे गलत करने के लिए. Correct ना? कोई देखने वाला नहीं. He is a rejected boy. उसको तिरस्कार किया गया था A beautiful woman is after him. और बहुत ही सुंदर स्त्री उसके पीछे पड़ी थी. Literally खींच रही है. कुछ खींच बीच नहीं, सब छोड़ के भाग गया. Misunderstanding होने दो. But I cannot do this wrong against God. प्रभु की नजर में गलत मैं नहीं कर सकता. See, what the world says and what the Bible says is opposite. संसार क्या कहता है और बाइबल क्या कहती है, ये विरुद्ध है. Amen. And then, you know, we know the story. Then slowly, God lifts Joseph up. फिर हम कहानी जानते हैं, धीरे धीरे प्रभु यूसुफ को ऊंचा उठाता And है. अभी climax आता है. Dan, dan, dan. The brothers are coming in front of him. अब भाई लोग उसके सामने आते हैं. Genesis 45 verse 2. उत्पत्ति 45 में 2. When Joseph meets his brothers, जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलता Bible है, says he wept aloud. अब बाइबल कहती है कि वो जोर से रोने लगा. He had emotions. उसके पास भावनाएं He थी. was not a machine. वो कोई मशीन नहीं था. Listen, सुने, there is pain. और उसके अंदर दर्द था. हेलो, हमारे अंदर भी जब कुछ ऐसा होता है, when there is a betrayal, और जहाँ पे धोखा होता है हमारे there अंदर, is pain. वहाँ दर्द भी होता है. Yeah, we are not machines. हम लोग मशीन नहीं I am है. not telling you तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कितना भी हुआ तुमको कुछ नहीं होना. I'm not saying that. हम वो बात नहीं कह रहे But आप. what do you do with that pain? वो दर्द के साथ आप क्या करते हो, That is important. ये महत्वपूर्ण है. Some people will take the pain and start bashing others up. और कुछ लोग जो दर्द को लेते हैं और दूसरे को जो है सताते रहते हैं. Only God can help us. सिर्फ परमेश्वर हमको मदद कर सकता है. I'm telling you, Joseph's relationship with God helped him. और यूसुफ का संबंध जो प्रभु के साथ था वो यूसुफ को मदद किया. If you don't lean on God, you will be finished. अगर आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहोगे तो आप समाप्त हो जाओगे. You look at people to help you, you will be disappointed. अगर लोगों की ओर से मदद को देखोगे तो आप हताश हो जाओगे. Amen. Look at Joseph. यूसुफ की ओर In देखिए. spite of everything he went through, ये सभी बातों में से हो give me गया. the next verse. Joseph said to his brothers, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, please come near to me. कृपा करके मेरे करीब आओ, Hello? Come near to me. मेरे निकट आओ. And they came near. और वो उसके निकट गए. And he says, I am Joseph. Next verse. उसने कहा कि मैं यूसुफ हूँ. But now don't be grieved or angry with yourself अब अपने आप पर गुस्सा मत हो, नाराज मत हो जाओ. because you sold me here. क्योंकि तुमने मुझे यहाँ भेज दिया. For God sent me परमेश्वर ने मुझे भेजा before you. तुमसे पहले. You sold me. तुमने मुझे बेचा, God, परमेश्वर ने मुझे भेजा. इंसान कुछ भी करे, प्रभु की योजना कुछ और ही होती है. मैं Are you with me? हमारे साथ है आप. Joseph understood that. और यूसुफ उस बात को समझ गया. He was not bitter. He was not angry. वो गुस्सा नहीं हुआ, कड़वाहट नहीं है उसके अंदर. Give me verse 8. 8वां वचन. Now it was not you who sent me here, but God. ये आपने जो मुझे भेजा है मगर प्रभु है. Yeah? God has sent me here. परमेश्वर ने मुझे भेजा है. God has lifted me up here. प्रभु ने मुझे यहाँ ऊपर उठाया है. Genesis 15 verse 19. So now again the brothers are fearful. यहाँ वापस भाई उसके डरे हुए. उत्पत्ति 50 में 19. Yeah, because they are thinking now Joseph will maybe attack us now. वो अभी सोचते हैं कि यूसुफ हम पे आक्रमण करेगा अभी. Joseph said to them, यूसुफ ने उनसे कहा, do not be afraid. आप डरो नहीं. Am I in the place of God? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? Does this look like an emotionally broken person to you? क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति भावनाओं में टूटा हुआ है? No. नहीं. He looks like a strong man ये भावनाओं में बहुत ही who मजबूत knows है. his God. वो अपने परमेश्वर को जानता है. And he is not even born again. यहाँ पे उसका नया जन्म भी नहीं हुआ है. Hello? Huh? Okay, give me verse 21. Now, don't be afraid. I will provide for you and your little ones. आप डरे नहीं, मैं आपका आपके बच्चों का जरूरत पूरा करूंगा. And he comforted them and spoke kindly to them. उसने उनको सांत्वना दिया, उनसे अच्छी बातें की. आमीन. Old Testament. पुराना नियम.
Amen. Somebody, walked with God. कोई प्रभु के साथ चला है, He did not, make excuses उसने बहाने नहीं बनाए to sin, पाप के लिए, but he focused and walked with God. मगर प्रभु पे ध्यान लगाया, उसके साथ चला And वो। in the end, he is an overcomer. और अंत में वो जो है वो विजयी व्यक्ति Today हुआ also है। we talk about him. आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। You know Samuel? शमूएल को जानते हो? Yeah. Samuel was a little boy. और शमूएल जो है बहुत छोटा बालक था। Bible says Hannah was not able to conceive. बाइबल कहते हैं कि हन्ना जो है वो बांझ थी, So she prayed, उसने प्रार्थना said, किया, God, if you give me a child, I'll give the child back to you. प्रभु तू अगर मुझे बच्चा देगा तो उसे मैं लौट कर आपके पास ही लाऊंगी। So God blessed her, और प्रभु ने उसको बच्चे से आशीषित किया gave her a baby Samuel. और उसको जो है शमूएल बालक दिया। When he was weaned, और जब उसका दूध छुड़ाया गया she took him to the temple. और हन्ना ने अपने बच्चे को जो है मंदिर में ले गए। How small he must be? कितना छोटा रहा होगा वो? Correct, na? How small? So small. बहुत ही छोटा था वो। She went and put him in the temple. और वो ले जाकर उसको मंदिर में देती है। This little boy is in a temple. ये छोटा बालक ये मंदिर में है। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या किधर साफ सफाई, something he must be doing. कुछ तो करता होगा मंदिर में। And let me tell you, the atmosphere over there was terrible. और वहाँ का माहौल जो बहुत ही खतरनाक था। The high priest, और जो महायाजक है, his sons were sleeping with the women who were coming into the temple. और महायाजक के जो बेटे थे वो पानी भरने वाली जो स्त्री थे उनके साथ वो व्यभिचार करते थे। Temple के अंदर. Yeah? And this small boy is growing in this atmosphere. और छोटा बच्चा जो उस माहौल में बढ़ रहा है। हाँ? और हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये पक्का बड़ा होके फालतू ही जाएगा रास्ते पे, क्योंकि ये सब देखा ना उसने, इतना देखा. But Samuel's story is very different. मगर शमूएल की कहानी बहुत ही अलग है। Very different. बहुत Let अलग। me show you 1 Samuel 3, पहला शमूएल 3 में verse 1. पहला वचन। Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. और एली के सामने शमूएल जो है प्रभु की सेवकाई कर रहा था। Eli is the high priest. और एली जो है महायाजक है। And the word of the Lord was rare in those days. और उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत ही कम मिलता था। Because people were not listening to the Lord. क्योंकि प्रभु का लोग सुन नहीं रहे थे उस समय। Okay, next verse. अगला वचन। And it came to pass at the time when Eli was lying down. और समय ऐसा हुआ कि वहाँ एली सो रहा था। Okay, next verse. I want to show you what Samuel was doing. शमूएल क्या करता था हम बताना Okay. चाहते हैं। Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. और शमूएल जो सोया हुआ था परमेश्वर के मंदिर में जहाँ वाचा का संदूक था। Where is Samuel lying down? शमूएल कहाँ सो रहा है? Ark of God. वाचा का संदूक। Ark of God speaks about the presence of God. वाचा का संदूक प्रभु का उपस्थिति को In the बताता है। temple there is immorality. और मंदिर में जो है अनैतिकता है। Yeah? But Samuel is lying down in God's presence. मगर शमूएल प्रभु के उपस्थिति में सोया हुआ है। We have no excuse. हमारे पास कोई बहाने नहीं We है। have no excuse. कोई बहाने नहीं है। I hear people telling me, Pastor, आपको पता नहीं ऑफिस में क्या क्या होता है, मैं फिर कैसा सीधा रहूं, किसे मैं सीधा रहूं? ये सीधा रहा? हाँ, रहा? हाँ. Yeah. This little child is, small thing going and sleeping in that near the ark. छोटा बच्चा जी जो है परमेश्वर के वाचा का संदूक के पास जाकर Next. वो सोया करता था। What happened? क्या हुआ? The Lord called out to him. परमेश्वर यहोवा ने उसको पुकारा। The Lord was not talking to anybody. परमेश्वर किससे बात नहीं करता The था। word of God was rare. प्रभु का वचन बहुत कम मिलता था। God started speaking to Samuel. अब प्रभु जो है शमूएल से बात In करने the लगा। middle of all that uncleanness, वो सारे अशुद्धता के बीच में Samuel found his refuge in the presence of God. तो शमूएल ने अपना जो है शरण स्थान को पाया प्रभु के उपस्थिति में। And he started hearing the Lord and he went on to become a mighty prophet. आमीन। और प्रभु का आवाज सुनने लगा और आगे बढ़ के बहुत बड़ा जो है नबी बना। Very big prophet. बहुत बड़ा नबी। बाइबल में लिखा है वो जो बोलता था उसके शब्द जमीन पे नहीं गिरते थे, आमीन। वो जो कहता था वो होता था. आमीन। This boy, his mother, father, nobody is there. ये बच्चे का जो है माँ बाप वहाँ कोई नहीं है। Still he had a relationship with God. और फिर भी उसका संबंध प्रभु के साथ था। Yeah. Yeah. No rejection problem. कोई तिरस्कार का समस्या नहीं Yeah, उसको। no rejection problem. कोई तिरस्कार का समस्या उसकी नहीं। मम्मी, once a year she used to come साल में एक बार माँ आती थी। and she will bring what, जानते क्या लाती थी? She will bring a linen coat for him. और उसके लिए जो है वो कपड़े ले आती थी। The coat which the priest will wear. और ऐसे कपड़े जो याजक पहनते थे। क्यों?
Because the child must never forget that he's there to serve God. क्योंकि बच्चा कभी भूले नहीं कि वो वहां पर है प्रभु का सेवा करने के लिए। What a mother. कैसी माँ है ये। So this boy, no toys, और ये बच्चे के पास कोई खिलौना नहीं, no teddy bear to hug and sleep, और कोई टेडी बेयर नहीं जो उसके साथ वो सो सके, no mother to sing, nicely to him. और कोई माँ नहीं वहां पे जो उसको गीत गा सके सुलाने के लिए। Still, he had a relationship with God. फिर भी उसका संबंध था परमेश्वर यहोवा के साथ। He was not emotionally broken. अब भावनाओं में वो टूटा हुआ नहीं था, He was strong और बहुत ही मजबूत था, because the Lord made him strong. क्योंकि प्रभु ने उसे मजबूत बनाया। We have no excuse. हमारे पास ऐसे कोई बहाने नहीं है। Let me tell you, whatever we have been through in life, मैं बताता हूँ कुछ भी हम जीवन में से गए क्यों ना हो, it doesn't matter anymore. इससे आगे फर्क नहीं पड़ता। Last verse, 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17, It says, if anyone is in Christ, यदि कोई मसीह यीशु में he is है, a new creation. वो नई सृष्टि है, All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है, All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है, All my rejection has passed away. मेरा तिरस्कार बीत गया है, All my betrayal has passed away. मेरी कड़वाहट बीत गई है, Nobody wanted me. They tried to abort me. वो सब छोड़ो अभी. कोई मुझे नहीं चाहता, मुझे गिराने की कोशिश किया उन्होंने, All things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है, Behold, new things have come. देखो सभी बातें नई हो गई है। God has cut off some things in our life once and for all. और प्रभु ने कुछ बातों को हमारे अंदर से काट के हमेशा के लिए निकाल दिया है। And now he says, come on, I am your father. वो कहता है कि आओ मैं तुम्हारा पिता हूँ अभी। If your father has not loved you, I am there to love you. तुम्हारे पिता ने तुमसे प्यार नहीं किया, मैं प्रभु तुमसे प्यार करता If हूँ। no one took care of you, I will take care of you. किसी ने तुम्हें नहीं संभाला, मैं तुम्हें संभालता हूँ। Even when your hair is white, the Lord will not forsake you. अगर आपके सर के बाल भी सफेद हो गए, प्रभु आपको छोड़ेगा That's नहीं। what the Bible says. बाइबल ऐसा कहती है। God is saying all things have gone, Baba. प्रभु कहता है पुरानी बातें निकल चुकी है, Now new things have come. आप नई बातें आ The गई Holy है। Spirit is there. पवित्र आत्मा यहाँ पर Our है, helper is there. हमारा सहायक है हमारे साथ। We can do much better than Joseph and Samuel. और यूसुफ और समूएल से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हम कर सकते You know what हैं। Jesus said? जानते हैं यीशु ने क्या There is कहा? no one greater born of woman than John the Baptist. यीशु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा से बढ़कर कोई नहीं है जिसका जन्म स्त्री से हुआ है, Amen. But the one who is born again. पर एक जो जिसका नया जन्म हुआ है, Born again in the kingdom of God. नया जन्म परमेश्वर के Is राज greater में, than John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी बढ़कर है। God inside you. परमेश्वर आपके अंदर है। You can do more than Joseph. आप यूसुफ से बढ़कर कर सकते You हो, can do better than Samuel. आप शमूएल से बेहतर कर सकते हो, Because God is inside you. क्योंकि प्रभु आपके अंदर है। You can control your emotions. आप आपके भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हो, You can forgive. आप क्षमा कर सकते हो, You don't have to walk in rejection. आपको तिरस्कार में चलने की जरूरत नहीं है। Some things we have to say stop. और कुछ बातों को हमें रोकना है। अपने जीवन में something you have to say stop now. Enough. आपको कहना है कि अब रुक जाए, अभी काफी हो I गया। am everything that God says I am. आओ मैं वो सब कुछ हूँ जो प्रभु कहता है मैं Can I हूँ। hear an amen, church? आमीन। Tell your neighbor you can do better. कहे पड़ोसी को आप बेहतर कर सकते हो, Because God is inside you. क्योंकि प्रभु आपके अंदर है। Come